Hello students, welcome to the class 12th history. Theme 15, this is the last lesson of the third book, Framing the Indian Constitution. Before we start the lesson, let me tell you this lesson is divided into two parts. This is the first video and second one will follow it. What we are going to study in this first video is probably we'll see the introduction, tumultuous time, that is उथल-पुथल का दौर, the making of Constituent Assembly, the dominant voices, जो आवाज़ें थी विशेष रूप से लोगों की मुख्य आवाज़ें कह सकते हैं, लोगों के व्यूज़ कह सकते हैं, the vision of the constitution, will of the people, defining rights, defining minority and rights of depressed castes. इतने विषयों पर हम इस वीडियो में पढ़ेंगे और बाकी के जो विषय बच जाते हैं दैट विल बी कवर्ड इन द नेक्स्ट वीडियो. So let us see our constitution, which was made, probably it was on the basis of cabinet mission which landed over here in 1946, and constitution was framed between the December 1946 to 1949. Every draft, every clause of the draft was discussed class by class. Probably there were 11 sessions which were spread over 165 days, and various committees and subcommittees were formed to refine the work. It's a very voluminous work. It was plenty of work had been done. So the committees and subcommittees were there which had refined the whole work, and finally we know on 26th of Jan 1950 it came into effect. It's a timeline you can see over here. You can see the Constituent Assembly which was constituted. Its first meeting held on 9 December 1946. Probably its chairman was Sachidanand Sinha at that period of time. But very next, that is on 11th of December, Dr. Rajendra Prasad had taken over. So various timeline has been mentioned over here. 26 November 1949 में ड्राफ्ट कंप्लीट हो गया था एंड 26 जनवरी 1950 को लीगली हमने अपने लिए इसको लागू कर दिया था. So this timeline you can remember, you can take a screenshot, you can write down. It is of helpful. You can see exact date. Plenty of exams we are asked कि how much time it had taken. So it is 2 years, 11 months and 18 days precisely. So this is important because sometimes you may be asked in the MCQ also. Now let us see what was the condition of the period when the constitution was made. It was a very tumultuous time, that is बहुत ही ज़्यादा उथल-पुथल का दौर था. The recent incidents which had taken place, it were afresh in the minds of people. भाई 15 अगस्त को आज़ाद तो हो गया था भारत, लेकिन क्या आज़ादी के साथ साथ बहुत कुछ चीज़ें आई थी जो कि हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे. सबसे बड़ी बात जो थी, ये भारत दो भागों में विभाजित हो गया था. इफ़ यू थिंक ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट which was in 1942, it was one of the most popular movement of the period. उसकी लोगों के मन में याद ताज़ी थी. सुभाष चंद्र बोस ने भी कहा था कि let us have the armed struggle and with the foreign aid to defeat the nation. ये दिमाग भी लोगों के दिमाग में चल रहा था. रॉयल इंडियन नेवी का विद्रोह भी 1946 में हुआ, वो भी लोगों के दिमाग में था. इन चीज़ों के अलावा one of the important thing is Congress and Muslim League, both the parties could not bring the religious reconciliation. That is, जो धार्मिक सहिष्णुता थी, जो धार्मिक एकता थी, जिसको तोड़ने के लिए अंग्रेज़ों ने शुरुआत से काम किया था, उसे कांग्रेस और मुस्लिम लीग, both were major parties. Probably कांग्रेस में some people have thought that way कि कांग्रेस has represented Hindus, though it was not correct, and Muslim League was precisely representing Muslims. तो इन लोगों ने मिलकर के भी ऐसी धार्मिक सद्भावना का निर्माण नहीं कर पाए जो हमारी चीज़ों को बना पाती. एंड वेरी नेक्स्ट वी नो इन 1946 कलकत्ता किलिंग्स, डायरेक्ट एक्शन डे के बाद जो हुआ था सब जानते हैं. इट वाज वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट. और व्हेन इंडिया वाज डिवाइडेड ऑन द डिवीजन ऑफ लाइन्स यूनियन, मिलियंस ऑफ रिफ्यूजीज वर ऑन द मूव. बहुत से लोग भारत की तरफ से, सो कॉल्ड उस वक्त जो इंडिया बना नया वाला, उस तरफ से जो पाकिस्तान की तरफ जाते हुए और पाकिस्तान से भारत की तरफ आते हुए, तो उन लोगों की कंडीशंस, दिस लेसन डजंट अलाउ मी लॉट टू टॉक अबाउट दिस,
वो बहुत ही निराशाजनक स्थिति लोगों के मन में थी। लोग अपना घर बार छोड़ करके भाग रहे थे। इन सब के अलावा एक और बड़ी समस्या उस वक्त दिमाग में थी हमारे संविधान निर्माताओं के, कि जो प्रिंसली स्टेट्स थे they were also, you can say, they have been ruled or they have been misruled, whatever you can say। तो उनकी वजह से भी नवाबों को, राजाओं को, उनकी संवैधानिक स्थिति ऐसी हो गई थी कि ऐसा लग रहा था कि वो स्वयं महाराजा हो जाएंगे और भारत के टुकड़ों में बढ़ जाएंगे। तो इट वॉज अ प्रॉब्लम ऑफ इंटीग्रेटिंग ऑल दोज एलिमेंट्स। तो इन सब चीज़ों के बीच में हमारी संविधान सभा का गठन होता है। लेट अस सी कि हाउ दिस संविधान सभा वाज कॉन्स्टिट्यूटेड। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कैसे, आप देखिए उस कंटेम्प्रेरी पीरियड का एक न्यूज़पेपर है जहाँ पे दिखाया जाता है कि इंडियन एक्सप्रेस का ये विच राइटली publishes the news, proclamation read out by the retiring Governor General and all, the news had been covered. अब now we'll talk about the making of the Constituent Assembly। हम सब जानते हैं कि जो कैबिनेट मिशन आया था उसके आधार पर ही कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का निर्माण किया गया था। ओके, तो इट वॉज डन अकॉर्डिंग टू द कैबिनेट मिशन प्लान ओनली। होता कैसे, देखिए, क्या इसके सदस्यों का चुनाव जो है सार्वभौमिक मताधिकार के आधार पर था? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज वॉज यूज? नो, ऐसा नहीं था। फ्रैंकली स्पीकिंग 1945-46 में जो विंटर्स में जो प्रोविंशियल इलेक्शंस हुए थे, उस इलेक्शंस में जो प्रोविंशियल पार्लियामेंट्स थी, प्रांतीय संसदें जो थी, उन्होंने संविधान सभा के सदस्यों को चुना था। तो बेसिकली इट वॉज नॉट बेस्ड ऑन द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, यूनिवर्सल फ्रेंचाइज के रूप में नहीं था। एंड व्हेन वी सी द मेंबर्स ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो मोस्ट ऑफ द मेंबर्स वर फ्रॉम द कांग्रेस ओनली। इफ यू गो इन द डेटा वाइज, तो प्रॉब्ली 82% मेंबर्स वर देयर हु बिलोंग टू द कांग्रेस। सो इट वॉज प्रॉब्ली डोमिनेटेड बाय द कांग्रेस। मुस्लिम लीग ने अपना अलग स्टैंड रखा था, उन्होंने इसको बाइकआउट करने की व्यवस्था बनाई, बहिष्कार करना उचित समझा। उनको लगता था कि साहब पाकिस्तान की मांग को जारी रखा जाए और इस संविधान सभा में हम सम्मिलित न हो, तो दे हैव बाइकआउटेड। सोशलिस्ट जो समाजवादी थे, इनिशियली दे हैव आल्सो नॉट ट्राइड टू जॉइन दिस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन दिस प्रिटेक्स्ट कि दिस इज मेड बाय द इंग्लिश पीपल एंड प्रॉब्ली ऑन दोज लाइन्स ओनली इट विल बी मेड। तो उनके मन में इस बात को लेकर शंका थी कि शायद भारत का संविधान अंग्रेज़ों के हिसाब से बनाया जा रहा, तो हम उसमें हस्तक्षेप या उसमें योगदान नहीं करेंगे। बट लेटर ऑन दे हैव आल्सो जॉइंड। अपार्ट फ्रॉम देम द प्रिंसली स्टेट्स के लोग भी इसमें मेंबर्स बनते हैं और वो भी इसमें जुड़ते हैं। नाउ एज आई सेड कि कांग्रेस हैड 82% ऑफ मेंबर्स एंड इट हैज़ डोमिनेटेड द होल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। नाउ वाज देयर ओनली सिंगल वॉइस और मेनी? तो कांग्रेस पार्टी होते हुए भी उसमें विभिन्न प्रकार की आवाज़ें थी, अलग अलग सोच विचारधारा के लोग थे जो उसमें सम्मिलित थे। ऐसा कहना गलत हो जाएगा कि सिर्फ कांग्रेस की थी, एक ही जैसी व्यवस्था उनकी थी, ऐसा नहीं था, ऐसा बिल्कुल नहीं था। अलग अलग निर्णायक मुद्दों पे, बातों पे उनके अलग अलग मत हुआ करते थे। जैसे इट्स मेंबर डिफर्ड इन देयर ओपिनियन ऑन द क्रिटिकल इशूज। जैसे सम मेंबर्स वर इंस्पायर्ड बाय सोशलिज्म, कुछ लोग समाजवाद से प्रभावित थे, तो सम वर डिफेंडिंग द लैंड लॉर्डिज्म, ऐसे भी थे। सम वर क्लोज टू कम्युनल पार्टीज ना, और कुछ लोग ऐसे थे जो सेकुलर नेचर के थे। तो इसमें वेरियस व्यूज़ वर रिफ्लेक्टेड। कांग्रेस, नो डाउट, इट वॉज ए नेशनल मूवमेंट एट दैट पीरियड ऑफ टाइम। तो उसके लोग जो थे उसमें कई प्रकार की विचारधाराएं साथ थी। और जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिस्कशन होता है तो इट वॉज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाई पब्लिक ओपिनियन ऑल्सो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जिन लोगों ने ही कहा उनकी बातें मान ली गई, संविधान सभा का निर्माण कर दिया गया, संविधान सभा ने उन्हीं बातों को मान लिया, ऐसा बिल्कुल नहीं था। बहुत से लोगों की बातों को भी इसमें इंक्लूड किया गया। आई मीन पब्लिक ओपिनियन। कैसे? प्रेस के द्वारा क्रिटिसिज्म एंड काउंटर क्रिटिसिज्म होता था और प्रेस उसको पब्लिश करती थी, तो उसके ओपिनियन को भी इसमें सम्मिलित किया जाता था। इवन पब्लिक्स वर आल्सो आस्क्ड टू सेंड देयर व्यूज़ एज ए कलेक्टिव पार्टिसिपेशन, उनको भी मौका दिया गया था। अब हम इसमें चर्चा करेंगे कि डोमिनेंट वॉइसेस की, मुख्य आवाज़ें किन लोगों की थी। तो देखिए, वैसे तो ऑलमोस्ट देयर वर 300 मेंबर्स इन द टोटल इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, बट देयर वर 6 पर्सन्स who played very very important role along with the 2 officials. So first 3 people, you can see the picture also. Dr. Rajendra Prasad,
Pandit Jawaharlal Nehru, and Sardar Vallabhbhai Patel are seen in this picture. These were these three persons belong to Congress. So I will call them Congress trio. Pandit Jawaharlal Nehru. Important thing what he did, I have just precisely written down certain things which were very important and corresponding to them. That is, Nehru has outlined the objective resolution. On 13 December 1946, he has read out objective resolution, which we will discuss in the later part of this lesson. And even a resolution for proposing national flag also was devised by Nehru. Sardar Vallabhbhai Patel, no doubt, he worked mostly behind the scenes. He had played a key role in drafting various reports, underground reports, and he has also tried to reconcile the opposing points of view. लोगों के बीच में जो विरोधाभास होता था, एक विपक्षी भावना की बात रहती थी, उन सबको रिकॉन्साइल करके एकमत करके रखने का काम भी सरदार वल्लभ भाई पटेल का था. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यू नो ऑल्सो, ही वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ दैट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली. कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली 9 दिसंबर को फर्स्ट मीटिंग हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को. दैट मीटिंग वॉज चेयर्ड बाई वन ऑफ द सीनियर मोस्ट मेंबर, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा. बट ऑन वेरी नेक्स्ट डे, दैट इज ऑन 11th of December, and I mean very next meeting, it was chaired by Dr. Rajendra Prasad, and he was elected as the President of the Constituent Assembly. And his responsibility was to conduct the meeting in such a way where constructive debates take place, where everybody gets enough chance to speak, to counter it, so that the comprehensive things can be worked out. Apart from these, Congress, there were three other members I'll talk about. Dr. B.R. Ambedkar, now everybody knows him. He was lawyer and economist. And if you see, he was a political opponent of Congress during the whole British rule. आपको पूना पैट का ध्यान होगा, आपको सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का ध्यान होगा, when he went to the England and things could not be sorted out, then Pune Pact was signed, you know all this. And जब भारत आज़ाद हो जाता है तो on the pretext of महात्मा गांधी he was made law minister of the nation. और Constituent Assembly में he was made the chairman of drafting committee, one of the most important committee, drafting committee, which had drafted. The two other names you can see, K.M. Munshi, who hailed from the Gujarat. He was also a lawyer and he was member of drafting committee. And second person is A.K. Iyer, Alladi Krishna Swami Iyer. That is, he was also lawyer from Madras, and he also helped out a lot in the drafting committee. मैंने बात की थी आपसे कि 6 मुख्य सदस्यों के अलावा 2 ऑफिशियल्स. लोगर द B.N. Rao, he was constitutional advisor to the government of India. See, this question is asked many times in the exam, even in the civil services also. So just remember it from 1 mark point also. It's very, very important. And he prepared series of background papers. He has studied various political systems in the countries, and he has made those reports so that we can make our things in better way. And second person is S.N. Mukherjee. He was chief draftsman. कहा जाता है कि उनके पास बहुत अच्छी एबिलिटी थी, बहुत सारे प्रपोजल्स को क्लियर लीगल लैंग्वेजेस में पुट अप करने की उनके पास एक अच्छा आप कह सकते हैं उनके पास काफ़ी इसकी बुद्धिमत्ता थी उनके पास. नाउ वी विल टॉक अबाउट द विजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. संविधान का विजन क्या था, संविधान की दृष्टि क्या थी. इसके लिए आपको जो बहुत शुरुआत की चीज़ मैंने डिस्कस की थी आपसे कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन उद्देश्य प्रस्ताव, जिसे कि 13 दिसंबर 1946 में जवाहरलाल नेहरू में इसको एक ऐतिहासिक प्रस्ताव के रूप में आप कह सकते हैं, संविधान के मूल आदर्श के रूप में उन्होंने प्रस्तुत किया था. व्हाट डिड ही टॉक अबाउट दिस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में क्या कहा उन्होंने. बेसिकली इट बिकेम द डिफाइनिंग आइडियल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. इट बिकेम द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमिंग का फ्रेमवर्क बनाया गया. एंड इट प्रोक्लेम्ड, इट सेड दैट इंडिपेंडेंट सॉवरेन रिपब्लिक इंडिया टू बी एन इंडिपेंडेंट सॉवरेन रिपब्लिक, स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य. ऐसा उन्होंने कहा कि भारत एक बनेगा, स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य बनेगा. यू कैन अंडरस्टैंड दीज वर्ड्स, इंडिपेंडेंट विच इज प्रॉब्ली मच अंडरस्टैंडेबल, सॉवरेन एंड रिपब्लिक. 3 शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया था. ही नेवर यूज द वर्ड डेमोक्रेटिक. आगे इसकी भी चर्चा करेंगे कि उन्होंने क्यों ऐसा नहीं किया था. what it will have, it will have plenty of things, like it will guarantee justice, equality and freedom to its citizens, and assure that adequate safeguards shall be provided for minorities,
backward and tribal areas and depressed and other backward classes. This is what he has a composite thing you can understand. इसको हम बिल्कुल भी छोटे में करके कहें तो भारत क्या बनेगा, एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य बनेगा जिसमें किन लोगों के हितों की रक्षा की जाएगी, वो उसमें बात की गई थी. अब सारा का सारा संविधान उसी के दृष्टिकोण से बनाया जाना था. जब संविधान बनने लग गया तो उसमें बहुत से लोगों ने अपनी बातों को कहा. इसको हम इस बात से रखेंगे कि साहब ये है क्या, द विल ऑफ द पीपल, लोगों की इच्छा क्या होगी, इस पर चर्चा करेंगे कि व्हाट पीपल थॉट ऑफ दिस वन. तो इसमें एक विल स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट पर्सन, दैट इज़ सोमनाथ लहरी, जो कि एक कम्युनिस्ट लीडर थे. और उन्होंने इसको बहुत पॉजिटिव ढंग से नहीं लिया था. हालांकि उन्होंने नेहरू जी की बात का स्वागत भी किया था, लेकिन इसके साथ साथ ही उनका मानना था कि जो ब्रिटिश की जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बन रही है, इट इज़ अ वर्किंग प्लान ऑफ ब्रिटिश एंड ब्रिटिश वुड लाइक इट टू बी वर्कड आउट. जैसा ब्रिटिश चाहता है वैसा होगा. इस वजह से वो इस बात को लेकर के संतुष्ट नहीं थे कि साथ ब्रिटिश का ही ये प्लान है. इसके जन्म में भी इसके जो संविधान सभा का जो जन्म होता है, ये भी ब्रिटिश के हस्तक्षेप से है और ये उसी की व्यवस्था है. नेहरू जी ने क्या कहा इसके लिए, ये जानना बड़ा आवश्यक है. He said कि you must not ignore the source from which this assembly derives its strength. That is very important. Governments do not come into being by state papers. Governments are in fact expression of the will of the people. Expression of the will of the people. Try to understand. उन्होंने कहा कि ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो बनेगी, it should take its aspirations from that of what kind of freedom struggle we have gone through. और इसीलिए उन्होंने कहा that it is worth mentioning that since the 19th century the ideals of democracy, equality and justice has become closely associated with the social struggles in India. ओके, जो महात्मा गांधी ने जो स्वामी विवेकानंद ने कैंपेन लॉन्च किया हिंदुइज्म को लेकर के, जो ज्योतिबा फूले ने महाराष्ट्र में सत्यशोधक समाज की संरचना की, इन सब बातों को उन्होंने कई चीज़ों को उसके बीच में लेकर के आए, कई सारे बातों को लेकर के आते हैं और ये बताते हैं कि साहब जो ये संविधान बनेगा निश्चित रूप से ब्रिटिश गवर्नमेंट के आधार के हिसाब से ही संविधान सभा का गठन किया गया है, लेकिन जो संविधान हम बनाएंगे उसको हम अपने हिसाब से बनाएंगे जैसा जनता चाहेगी, विल ऑफ द पीपल. इस बात को उन्होंने इसमें डालने की कोशिश की. एक चित्र आप देख सकते हैं, इस चित्र में भी दर्शाया गया है और इसमें बहुत सारे कानून पास किए गए. जैसे जैसे ब्रिटिश सरकार का समय बीतता चला गया, दे हैव ट्राइड टू रिफॉर्म वेरियस थिंग्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन. उसे हम कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स कह सकते हैं. चाहे 1909 की बात की जाए, चाहे 1919 की बात की जाए, चाहे 1935 की बात की जाए, इन सब ने कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म को आगे बढ़ाया था. तो 1909 में तो देखिए सब फर्स्ट टाइम कम्युनल अवार्ड की बात की गई थी, सब जानते हैं. 1919 में द एक्ट ऑफ 1919, उसमें क्या किया था, एग्जीक्यूटिव को पार्टली रिस्पॉन्सिबल कर दिया था प्रोविजनल लेजिस्लेचर को. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इसमें देखिए प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को भी जगह दी गई थी और एग्जीक्यूटिव को पूरी तरह से लेजिस्लेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल कर दिया गया था. हालांकि एक बात ध्यान रखने वाली बात है कि इस टाइम पर भी जो 1937 में जो चुनाव हुए थे उसमें 11 में से 8 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी थी. बट वी मस्ट अंडरस्टैंड कि उस वक्त वोटिंग राइट्स किसको थे. वॉज इट यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज? आंसर इज नो, देयर वाज नो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. ओनली 10 to 15% पीपल हैव गॉट द राइट टू वोट. तो इसीलिए इस बात को यहाँ पे समझने की आवश्यकता है कि किस प्रकार से इन सुधारों को भी किया गया. एक बात और भी समझें आप, इन सुधारों को भारतीयों के कहने पर नहीं किया गया था, अंग्रेजों ने स्वतः किया था. तो देयर वॉज इम्प्रूवमेंट इन द काइंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वी नीड टू हैव. अब हम बात करेंगे अधिकारों की, राइट्स की. कौन से अधिकार होने चाहिए, किसको मिलने चाहिए. हम सब जानते हैं भारत एक बहुत ही डाइवर्सिफाइड कंट्री था और कंट्री है. तो इसमें हम दो चीज़ों की बात करेंगे. एक तो हम बात करेंगे सेपरेट इलेक्टोरेट की, पृथक निर्वाचकता की,
और दूसरी बात करेंगे राइट्स फॉर द माइनॉरिटीज़, राइट्स फॉर द डिप्रेस्ड कास्ट एट्सेट्रा। ठीक है, तो हम सेपरेट इलेक्टोरेट की बात करें सबसे पहले माइनॉरिटीज़ के बारे में। सेपरेट इलेक्टोरेट की शुरुआत अगर ध्यान से देखिए तो 1909 के एक्ट में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दिया था। दे वांटेड टू ट्राई टू डिवाइड द इंडिया। They could very much see the two major factions, Hindus and Muslims, and they have very smartly sowed the seed of division. That is, they have offered them, Muslim people, the separate electorate. तो उस पर नहीं जाना चाहता मैं, लेकिन जब संविधान बनने लग गया तब क्या हुआ उसकी चर्चा करना बहुत ज़रूरी है। जो देखिए हमने एक नाम लिखा हुआ है, बी पोकर बहादुर, मद्रास के थे। उनका मानना था कि साहब नहीं, सेपरेट इलेक्टोरेट होना चाहिए, और उनका मानना था कि मुस्लिम के नीड्स को मुस्लिम ही समझ सकते हैं। इस ग्राउंड पर उन्होंने अपनी बातों को रखा था, और उनका था कि अगर आपको एक अच्छा फ्रेमवर्क देना है, पॉलिटिकल माइनॉरिटीज़ को एग्जिस्ट करते हुए रखना है, तो यू नीड टू क्रिएट ए पॉलिटिकल फ्रेमवर्क इन विच माइनॉरिटीज़ को लिव इन हार्मनी विथ अदर्स। तो इस प्रकार के उन्होंने बहुत जोशीला और बहुत ही तार्किक भाषण दिया था। इट वॉज काउंटर बाई मेनी। तो उन्होंने कहा था कि गवर्नमेंट में मीनिंगफुल वॉइस उनका भी होना चाहिए, और उनको एक पॉलिटिकल फ्रेमवर्क मिलना चाहिए जिससे कि अच्छे से रह सकें वो। तो इसके लिए उनको एक आप सेपरेट इलेक्टोरेट देना चाहिए। नाउ सी, ऐसे बहुत से लोग थे जो उसके विपक्ष में थे, इस व्यवस्था के, सेपरेट इलेक्टोरेट के, पृथक निर्वाचन नहीं चाहते थे कि उनको माइनॉरिटीज़ को अलग से दिया जाए। उसमें तो सबसे पहले देखिए तो बहुत सारे नेशनलिस्ट लीडर्स इसके खिलाफ थे, और मैं कुछ एक लोगों का नाम कोट करते हुए चलूँगा। आप देख सकते हैं आर वी धुलेकर ने इसको पूरी तरह से मना किया, और उनका मानना था कि इंग्लिश हैड प्लेड दैट ट्रिक टू डिवाइड हिंदू मुस्लिम यूनिटी, और उसी पे फिर से हम आगे जा रहे हैं। तो लेट अस ड्रॉप इट आउट। सेकंड बात उन्होंने जो कही कि सेपरेट इलेक्टोरेट जस्ट लाइक ए पॉइजन, जहर जैसा है, जो आपको मेजॉरिटी से धीरे धीरे आपको दूर कर देगा। गोविंद बल्लभ पंत कुछ हद तक इन बात को सपोर्ट करते थे। उनका मानना था कि माइनॉरिटीज़ को भी जीने का पूरा हक है, लेकिन उन्होंने कंक्लूड किया कि इट इज़ हार्मफुल फॉर द नेशन एंड इवन फॉर द माइनॉरिटीज़ ऑल्सो। And he went even up to that kind of statement that it is suicidal to minorities. समझने वाली बात है, ध्यान से समझिए। बहुत सारे मुस्लिम लीडर्स ने इसका अपोज किया था। एक का मैं जिक्र कर देता हूँ, बेगम एजाज रसूल का। उन्होंने कहा इट विल बी सेल्फ डिस्ट्रक्टिव होगा ये, और ये माइनॉरिटीज़ को आइसोलेट कर देगा मेजॉरिटी से, तो विच इज़ नॉट गुड फॉर दिस। तो 1949 तक आते आते बहुत सारे मुस्लिम मेंबर्स ने, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो लोग थे, उनका मानना था कि सेपरेट इलेक्टोरेट वर नॉट इन द फेवर ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द माइनॉरिटीज़। इसके अलावा करना क्या चाहिए? दे आर्ग्यूड दैट द मुस्लिम्स इन प्लेस ऑफ मेकिंग ए डिमांड फॉर द सेपरेट इलेक्टोरेट शुड मेक एन एक्टिव कंट्रीब्यूशन इन द पॉलिटिकल सिस्टम। इस बात की मांग उन्होंने उठा दी थी। दूसरी बात हम करेंगे, कुछ और लोगों ने इसको माइनॉरिटीज़ को अपने ढंग से एक्सप्लेन किया है, जिसमें एन जी रंगा की हम बात करें, जो कि सोशलिस्ट थे। उनका मानना था कि साहब माइनॉरिटीज़ कौन है? उनका मानना था माइनॉरिटीज़ वो हैं जो पुअर हैं, जो डाउन ट्रॉडन है। फॉरगेट अबाउट द रिलीजन। जो पुअर हैं, जो डाउन ट्रॉडन है, दे आर इन माइनॉरिटी। उनका मानना था कि जो लोग बहुत गरीब हैं, दे नीड प्रॉप्स, दे नीड ए लैडर, उनको सीढ़ी चाहिए ऊपर चढ़ने के लिए। अब आप समझ सकते हैं सीढ़ी की बात क्या है, उनको सहारे की आवश्यकता है, ऐसी बात की। दूसरे एक ट्राइबल लीडर हैं जयपाल सिंह, जिन्होंने माना कि भाई ट्राइबल्स हैव बिन डिस्क्रिमिनेटेड अलॉट सिंस एजेस। उनको बहुत तरह से किया गया। उन्होंने कहा कि न्यूमेरिकली वो जो ट्राइब्स हैं वो माइनॉरिटी में नहीं है, बट डेफिनेटली द काइंड ऑफ एक्सप्लॉयटेशन हैव बीन डन विद देम, दे शुड आल्सो बी प्रोटेक्टेड। तो ये कंपोजिट व्यू निकल करके आता है व्हेन वी टॉक अबाउट द माइनॉरिटीज़। अब एक बहुत ही डिबेटेबल इशू है विच इज़ है दैट इज़ राइट्स ऑफ डिप्रेस्ड कास्ट, कि डिप्रेस्ड कास्ट के राइट्स को क्या दिए जाएँ, क्या उनको राइट्स मिलने चाहिए। इस विषय पर बहुत बहस की आवश्यकता थी, और बहुत सारा बहस हुआ भी था इसको लेकर के। इसमें अलग अलग स्पीकर्स ने, लोगों ने अपनी अलग अलग बातों को रखने की कोशिश की थी कि साहब किस प्रकार से हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं, किस प्रकार से हम इस संविधान को बहुत ही कंस्ट्रक्टिव बना सकते हैं, बहुत ही फ्रूटफुल बना सकते हैं। तो इसके लिए डिप्रेस्ड क्लास के जो सबसे पहले मैं आप चर्चा करूँ, देखिए हमने इसमें लिखा हुआ है, लोगों ने माना था कि प्रॉब्लम ऑफ अनटचेबल्स कुड नॉट बी सॉर्टेड आउट ओनली थ्रू द प्रोटेक्शन एंड सेफगार्ड्स, कि आप सिर्फ प्रोटेक्शन दे रहे हैं, सेफगार्ड प्रोवाइड कर रहे हैं, इससे कुछ नहीं होगा। इससे जो प्रॉब्लम है वो दलितों की या दलितों की, वो प्रॉब्लम समाप्त नहीं हो पाएगी। तो दक्षायनी वेलायुधन जो मद्रास से हैं, उन्होंने कहा है कि इंस्टेड ऑफ ऑल दिस, rather along with all this, to do away social disabilities,
कि जो सारी जो सामाजिक अपंगता है, जिस प्रकार की सोच है, उसको दूर कर दिया जाए, उसे हटा दिया जाना चाहिए, उसको दूर कर देना चाहिए और तभी हमारा भला हो सकता है। ठीक है। इसके बाद इसमें एक बहुत डोमिनेंट वॉइस आती है जे नागप्पा की, जो मद्रास से आते हैं। उनको कहा कि साहब ये जो दमित क्लासेज हैं, जो दमित जातियां हैं, न्यूमेरिकली दे आर नॉट माइनॉरिटी, लेकिन उनकी सफरिंग को देखा जाए तो उनकी सफरिंग के जो मुख्य कारण है वो सिस्टमेटिक मार्जिनलाइजेशन हुआ है। चाहे राजनीति हो, चाहे समाज, उनको सिस्टमेटिकली उनको मार्जिनलाइज करके हाशिए पर रख दिया गया है। तो उस चीज़ को दूर करने की आवश्यकता है जिससे कि हम उनको मेन स्ट्रीम में ला सकें। और के जे खंडेलकर की अगर बात करें, जो कि सेंट्रल प्रोविंस से बिलोंग करते थे, तो उनका भी काफ़ी हद तक इसी प्रकार का मत था। तो इस पर बहुत बहस होती है और लास्ट में जाकर के जो कंक्लूजन निकलता है, आम सहमति होती है, वो ये होती है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैज़ रिकमेंडेड सर्टेन थिंग्स। आई हैव रिटन डाउन 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ दिस वन विच यू कैन राइट। अनटचेबिलिटी बी एबॉलिश्ड, पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाना चाहिए। हिंदू टेम्पल्स बी थ्रोन ओपन टू ऑल कास्ट, जो मंदिर थे हिंदुओं के वो सभी के लिए खोल देना चाहिए। उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए कि कौन सा व्यक्ति किस जाति या धर्म, किस जाति का या किस समाज का है। और अंतिम बात जो इम्पोर्टेंट है उसमें, सीट्स इन लेजिस्लेचर्स एंड जॉब्स इन गवर्नमेंट ऑफिसर्स बी रिजर्व्ड फॉर द लोवेस्ट कास्ट। जो लोवेस्ट कास्ट है उनके लिए सीटें आरक्षित होनी चाहिए, चाहे वो लेजिस्लेचर की बात की जाए, चाहे सरकारी नौकरियों की बात की जाए। तो यहाँ तक मैंने कवर किया। बाकी के जो लेफ्ट ओवर पोर्शन है दैट विल बी कवर्ड इन द नेक्स्ट वीडियो।